Hello everyone. Today we will discuss about the developmental scenario of teacher education in India after 1940. Previously we know that how the teacher education developed from ancient period to 1940s. We can see that there is no very significant changes in the scenario of teacher education. Here we can know about the developmental scenario and vitalizing of teacher education and different commissions and committees recommendation for teacher education. So let's start the session. So here we can see that vitalizing teacher training. Vitalizing means to activate the teacher training program, to making the teacher training program more energetic. So here vitalizing is जीवित या जीवंत करना, टीचर ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण को जीवंत करना. By 1934, 13 out of the 18 universities had set up faculties of education. We know that in 1934 there are 18 universities in our country, and from 18 universities there are 13 universities who had set up their faculties of education. A great gap was noticed between the trained teachers and the relevance of their training. There we can see that in the trainee teachers and their training, there is no proper coordination. What they are learning and what they are giving in the teaching atmosphere, there is a great gap. There is a great difference between these things. So it was noticed in that period. Particularly the rural India got to overlooked at large extent. We know that India is a country of villages, so we have to take care of the rural people and the rural areas. But here we see that the rural India was totally neglected at the large extent. So, then, with a view to ascertaining what would be the minimum provision required to vitalize the main fields of educational activity in the country. So here the education committees or different type of institutions, they thought about how they can vitalize the educational activity in their country. How can they activate teacher training program or the educational institutions? So they set up the Central Advisory Board of Education. We know that the name of Central Advisory Board of Education is CAVE, which was established in the year 1935. It was re-established in 1935. Previously, its concept was framed in 1920, but due to some problem, it was not full-fledged continue as the Central Advisory Board of Education. So again in 1935, it get its systematic form. Then it surveyed the main fields of educational activities. The CAV surveyed the what were the educational activities was takes place in the country. The report submitted under the chairmanship of Sir John Sargent. We know that about the Sargent Committee. So here Sir John Sargent was appointed as the chairman of that committee, and the committee is known as the Sargent Committee. So here we know about the Sargent Commission and its recommendation regarding teacher education. Sargent Commission was established after the Second World War for educational development in India by British run government of India. You know that at that time British government was run in the India, and here we can see that the Second World War was finished, and after that every country, they were trying their level best to develop themselves. So here Sargent Commission established after the Second World War, and they try for the educational development in India.
The central goal of the Sargent Committee was the educational reconstruction in India. The committee here focused on to reconstruct the educational activities and the educational programs in India. शिक्षा का पुनर्गठन करना. पहले जो शिक्षा बहुत ही शिक्षा व्यवस्था जो थी हमारी बहुत ही खराब परिस्थिति इसकी हो गई थी, तो इसको पुनः संगठित करना इसका मुख्य उद्देश्य था. रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन, द कमिटी recommended to establishment of elementary schools and high schools. Here the committee recommended to establish two types of schools. One is elementary schools, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय, एंड हाई स्कूल्स जिसको हम कह रहे हैं माध्यमिक विद्यालय. हाई स्कूल्स ऑफ टू टाइप्स. There should be two types of high school. One is academic and second is technical and vocational. एक है एकेडमिक गतिविधि के ऊपर होगा और दूसरा है तकनीकी तथा वोकेशनल व्यावसायिक. इस तरह के विद्यालय की स्थापना होगी. द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. अब विद्यालय का तो गठन हो जाएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स उनका होना चाहिए, साथ में उनका रिक्रूटमेंट भी होना जरूरी है. Sargent report assumes that one teacher will be required for every 30 pupils. 30 pupils in junior basic schools. The school type is junior basic schools, where the pupil teacher ratio will be 1:30. For every 25 pupils in senior basic schools. Senior basic schools में 1:25 रहेगा, and every 20 pupils in high schools. और high school में 1:20 रहेगा टीचर pupil रेशियो. तो ये जो कमीशन का रिकमेंडेशन था हम देख रहे हैं, अभी भी हम लोग उसका पालन कर रहे हैं कि इतने शिक्षक और इतने स्टूडेंट अगर सही रहेंगे तभी जाके पठन पाठन का कार्य हमारा बेहतर हो पाएगा. सर्जेंट कमीशन के कुछ और रिकमेंडेशंस हैं जो इस तरह से हैं. द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए टीचर हु हैज़ completed the high school course should be 2 years training in junior basic schools and 3 years training in senior basic schools. Here we can see that the minimum qualification a teacher who has completed, they have to complete 2 years training for high school courses and 3 years training in junior basic school or senior basic schools. तो यहाँ पे देख रहे हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए टीचर बनने के लिए 2 साल का ट्रेनिंग और एलिमेंट्री विद्यालय के लिए 3 साल का ट्रेनिंग यहाँ पे प्रावधान किया गया. The non-graduate teachers in high school are expected to undergo a training course for 2 years and the graduates would receive 1 year training. Here there is another provision. Non-graduate teachers जो हैं उनको high school में अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो उनको 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स करना होगा और जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ पे प्रदान किया जाएगा. Then refresher courses should be provided at frequent intervals in order to keep trained teachers up to date. यहाँ पे ट्रेन टीचर्स को अप टू डेट रखने के लिए जो शिक्षक ऑलरेडी विद्यालय में हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज फ्रिक्वेंटली प्रोविज़न रखना ज़रूरी है ताकि वो अपने प्रोफेशन में अपडेट रहे. To revise the scales of pay to be given to all grades of teachers, particularly to the primary stage teachers who are paid very low salary. यहाँ पे स्केल को रिवाइज करने की बात कही गई, साथ में जो ग्रेडेशन होता है टीचर्स का सीनियर जूनियर, यहाँ पे उसको भी उस आधार पे पेमेंट देने की बात कही गई और पर्टिकुलरली प्राइमरी स्टेज टीचर्स के लिए यहाँ पे ध्यान दिया गया क्योंकि उनको बहुत ही कम सैलरी उस समय दिया जाता था. तो सर्जेंट कमीशन के इस रिकमेंडेशन के बाद
हम देखते हैं द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस थे। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज़ द फर्स्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस in the year 1948 or into 49. The commission is known as Radhakrishnan Committee. We know that Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the chairperson of the committee, did full justice to detailing the course of the training. उन्होंने यहाँ प्रयास किया कि किस तरह से जो शिक्षक प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके साथ जस्टिस किया जाए। With a view to improving upon the standard and depth of teacher training, the Commission suggested the following measures. उन्होंने शिक्षा को गंभीरता से लिया और शिक्षक प्रशिक्षण में कुछ सुधार करने के लिए, कुछ विकास करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रदान किए। जैसे कोर्सेस शुड बी रीमॉडल्ड, जो पाठ्यचर्या है उसको पुनः गठित किया जाए। More time and weight should be given to school practice in assessing students' performance. यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और वेटेज स्कूल प्रैक्टिस को दिया जाए और स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है, जो ट्रेनीज़ हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसका आकलन किया जाए। Suitable school should be used for teaching practice. सही रूप से सही व्यवस्थित विद्यालयों का चुनाव किया जाए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। Students should be encouraged to fall in with the current school practices and make the best of it. जो practices या जो परिवर्तन यहाँ पे किया गया है स्टूडेंट उसको पालन करे और स्कूल प्रैक्टिस को वो बेहतर रूप से आत्मसात करें। ट्रेनिंग कॉलेज स्टाफ रिक्रूटमेंट शुड बी फ्रॉम पीपल हैविंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल टीचिंग। ट्रेनिंग कॉलेज में जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा उनका प्रीवियसली स्कूल टीचिंग का भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कोर्स इन थ्योरी ऑफ एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू लोकल सर्कमस्टांसेस। जो भी कोर्सेज हम प्रदान करेंगे उसमें लचीलापन होना चाहिए। जो भी थ्योरी के पेपर्स होंगे और वो लोकल एडेप्टेबल होना चाहिए। स्थानीयता को भी यहाँ पे देखना है कि वो उस आधार पर सही बैठ रहा है या नहीं जो भी कोर्सेस हम प्रदान कर रहे हैं। द टू डिस्टिंक्टिव मेजर्स रिलेटेड टू द themselves to master's course of study to be pursued after years of teaching experiences and to encouraging original work by professors and teachers on ऑल इंडिया बेसिस। यहाँ पे ये भी प्रावधान रखा गया जो टीचर्स हैं जो शिक्षकता कर रहे हैं उनको अपना मास्टर कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो हायर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो अपॉइंटेड हुआ टू सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड फॉर द यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया। इसका संगठन हुआ और इन्होंने जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में उनको फंड एलोकेट करना इनका मुख्य कार्य था। उसके बाद आता है हमारा द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। इट इज़ नोन एज मुदलियार कमीशन। It stressed once again the importance to teaching practice in school. इन्होंने भी विद्यालय अभ्यास पाठ या विद्यालय प्रशिक्षण के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया। यहाँ पे उन्होंने पुनर्गठन करने के लिए क्या डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल का उन्होंने कहा कि जो स्कूल पहले ही प्रैक्टिस टीचिंग के लिए लिया जा रहा है उनको पूर्ण रूप से पुनर्संगठित किया जाए ताकि वो एक बेहतर ट्रेनिंग स्कूल के रूप में आगे आ सकें। एक मॉडल स्कूल का निर्माण हम उनको कर सकें। देन फर्स्ट टाइम स्ट्रेस फॉर ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एटलीस्ट 2 स्कूल सब्जेक्ट वाज ब्रॉट फोर्थ। पहली बार यहाँ पे ये देखा गया कि मेथड्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण विधि में 2 विषयों का चुनाव करने की बात यहाँ पे सुझाव दिया गया। जैसे हम लोग देखते हैं बीएड में 2 सब्जेक्ट लेना है मेथड्स में, उसी विषय का प्रचलन यहाँ से प्रारंभ हुआ। द स्कोप ऑफ टीचर ट्रेनिंग पर्टिकुलरली इन इट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुड बी ब्रॉडन। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शिक्षक प्रशिक्षण का उसको और ज़्यादा विस्तृत किया गया।
पीपल टीचर्स शुड बी ट्रेन इन वन और मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो प्रशिक्षु हैं उनको एक से ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रशिक्षित करने की बात यहाँ पे कही गई। देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर रिफ्रेशर कोर्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स इन ट्रेनिंग कॉलेजेस। ट्रेनिंग कॉलेजेस में भी रिफ्रेशर कोर्स या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप आदि का संगठन करने के लिए कहा गया, ताकि इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतर। स्टाइपेंड का प्रोविज़न रखा गया, स्टेट जो है वो स्टाइपेंड को प्रोवाइड करे। देयर शुड बी हॉस्टल्स इन ट्रेनिंग कॉलेजेस में हॉस्टल का प्रोविज़न रखा जाए, ताकि सुदूरवर्ती इलाकों से जो विद्यार्थी आते हैं उनको समस्या ना हो रहने का। रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस, शिक्षक की स्थिति का विकास करने के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है। उनके सैलरी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, रेसिडेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज, स्टडी लीव, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सभी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात कही गई। ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कही गई। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने मुख्य रूप से बहुत सारे यहाँ सुझाव प्रदान किए हैं जो कि शिक्षक प्रशिक्षण को और ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसके बाद है 52 के बाद ये देखा गया कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन का संगठन किया गया। 1955 में इसका गठन हुआ और इसने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दिए। सेकेंडरी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए माध्यमिक शिक्षा का विकास किस तरह से हो पाए। अब यहाँ जब माध्यमिक शिक्षा का विकास की बात कहा जा रहा था तो शिक्षक प्रशिक्षण का विकास होना आवश्यक हो जाता है। सो यहाँ पे द काउंसिल थ्रू इट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज प्लान टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स इन सर्विस। यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कही गई जो टीचर्स सर्विस में है, ताकि स्कूल प्रैक्टिस जो है ट्रेनिंग के दौरान उसको उस तरह से प्लान किया जाए ताकि जो टीचर्स इन सर्विस में जाएंगे वो एक्टिवली अपने पार्टिसिपेशन महाविद्यालय में दे सकें। इसीलिए उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट को एक्सटेंशन करने की बात कही जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। The beginning of 60s saw several big changes in the field of teacher education. The formation of NCERT. यहाँ पे NCERT का गठन हुआ जो कि पूर्ण रूप से टीचर एजुकेशन को प्रभावित करती थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 4 रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जिसको हम RIs कहते हैं, तो ये RI जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इनका संगठन किया गया। अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में और मैसूर में 4 जगह ये बनाया गया। ईच वन रन इनटू इंटीग्रेटेड 4-year टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और हर रीजनल कॉलेजेस में 4 years इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी चालू किया गया। Then the inception of B.Ed correspondence course to clear the backlog secondary teachers. यहाँ पे जो टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम को पूरा नहीं किए थे उनको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस B.Ed कोर्स करने के लिए भी सुझाव दिया गया और उसका प्रारंभ किया गया। पार्ट टाइम M.Ed कोर्स को भी यहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो शिक्षक प्रशिक्षण को यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन प्रभावित करने लगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का संगठन या गठन यहाँ पे होने लगा। उसके बाद द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 इसका गठन किया गया और यहाँ पे इसके कुछ रिकमेंडेशन इस तरह से हैं। द कमीशन इज़ नोन एज कोठारी कमीशन, हम जान रहे हैं इसको कोठारी आयोग के नाम से। द थर्ड कमीशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, after independence it is the third education commission. It point out that the recognition and the aid to schools should be granted on the merit of the part of the school play in the practical training of recruits whose service they subsequently use. यहाँ पे विद्यालय का जिस तरह का परफॉर्मेंस है, जिस तरह का विद्यालय अपने कार्य को निर्वहन करते हैं, उस आधार पर उनको ग्रांट प्रदान किया जाए। कुछ
उनको उस तरह से रिकॉग्निशन प्रदान किया जाए जिस तरह से वो अपना काम करेंगे। ट्रेनिंग रिक्रूट टूवर्ड्स सर्विस दे सब्सिक्वेंटली यूज, इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया। द कमीशन रिमार्क दैट ए साउंड प्रोग्राम ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर्स इज एसेंशियल फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ गुणात्मक विकास भी आवश्यक है। गुणात्मक विकास के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा और उसके ऊपर यहाँ रिमार्क दिया गया था। For the qualitative improvement of teacher education, there should be reorientation of subject knowledge, both independently in collaboration with university departments or general colleges. यहाँ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है अगर हम एजुकेशन जो सब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट नॉलेज है टीचर एजुकेशन के लिए उसको रीओरिएंट किया जाए, बोथ इंडिपेंडेंटली भी और कोलाबोरेटली भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में या अदर जनरल कॉलेजेस में। इसको डिफरेंट स्ट्रीम के साथ कंबाइनली भी दिया जा सकता है, इंटीग्रेटेड वे में भी दिया जा सकता है और इंडिपेंडेंटली भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बात यहाँ पे कही गई। देयर शुड बी ए नेसेसिटी ऑफ इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ इसकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई कि किस तरह से टीचिंग मेथड्स का विकास किया जाए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। ये दोनों बातों को यहाँ पे महत्व दिया गया। इंडिविजुअल लाइब्रेरी वर्क प्रिपरेशन, जब एक प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण लेता है तो वहाँ पे इसको विभिन्न प्रकार के कार्य को यहाँ करना पड़ता है जो कि टीचिंग मेथड्स या उसके एकेडमिक वर्क को इम्प्रूव करता है, जैसे इंडिविजुअल लाइब्रेरी वर्क प्रिपरेशन, रिव्यू रिपोर्ट, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट वर्क, डिस्कशन एंड सेमिनार। दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये सभी को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का मुख्य भाग में रखा गया और शिक्षक प्रशिक्षण का मूल्यांकन बेहतर ढंग से करने के लिए सुझाव दिया गया। द कमीशन सजेस्टेड दैट टू मेक स्टूडेंट टीचिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप, स्टूडेंट का जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है उसको कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप में परिवर्तित किया जाए। इन व्हिच द ट्रेनीज वुड बी एबल टू ऑब्जर्व द एंटायर वर्क ऑफ द स्कूल, जिसमें कि एक प्रशिक्षु विद्यालय का पूरा गतिविधि को ऑब्जर्व कर पाए, निरीक्षण कर पाए सक्रियता के साथ इन ऑल द इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ ए टीचर, उसको समझ सके बोथ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के भीतर का कार्य और कक्षा के बाहर का कार्य, ये दोनों को वो जान सके। उसके बाद इस कमीशन के और कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे टू रीऑर्गेनाइज ऑफ ए कंटेंट कोर्स which would include study fundamental concepts and their implications for the school syllabus। जो कंटेंट कोर्स है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, पुनर्संगठित किया जाए, उसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डाला जाए जो कि विद्यालय के सिलेबस के साथ मेल खाता हो। 1 year टीचर एजुकेशन कोर्स भी स्ट्रेंथन फॉर ईयर्स टू कम। उसके बाद देखा गया कि 1 year टीचर एजुकेशन कोर्स को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किया गया है कमिंग ईयर्स में। देन प्रोफेशनल स्टडीज़ इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नीड रिविजन इन ऑर्डर टू लेंट नेचुरलनेस एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ये देखा गया कि जो भी प्रैक्टिकेबिलिटी है या जो भी नेचुरलनेस है उसको रिवाइज करने की बात कही गई, वो उसको मेंटेन करने के लिए कोर्स शुड अवॉइड प्लेटिट्यूड्स एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडियन एजुकेशन। जो भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं है उसको रिमूव करने की बात कही गई और जो भारतीय संदर्भ में आवश्यक है उसको इंक्लूड करने की बात कही गई यहाँ पे। तो यहाँ देखा गया कि जो नेचुरलनेस है इंडिया का, जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, उसको यहाँ पे महत्व दिया गया। द टीचिंग मेथड्स यूज्ड इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नीड ए केयरफुल रिविजन अकॉर्डिंग टू द कमीशन। टीचिंग मेथड्स जो भी हम
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर रहे हैं उसको केयरफुली रिवीजन करना है ताकि टीचिंग मेथड बेहतर हो। इनोवेशंस भी यहाँ पे मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नए नए जो हैं विचार उनको यहाँ पे स्कूल टीचिंग में अप्लाई करने की बात कही गई, उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखा गया। द कमीशन रिकमेंड्स द प्रैक्टिस टीचिंग इन 2 phases। यहाँ पे 2 भाग में प्रैक्टिस टीचिंग को रखने की रिकमेंडेशन कही गई। इनिशियली द टीचिंग प्रोग्राम शुड बी इंटरमिटेंट when the students should be oriented to the entire school situation। पहली बार जिसमें एक प्रशिक्षु विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उसको जानेगा, ओरिएंटेशन उसका होगा। तो यहाँ पे पहला फेज ये रहेगा। दूसरा है फाइनली द पीरियड शुड इन्वॉल्व कंटिन्यूअस ब्लॉक टीचिंग फॉर एटलीस्ट 8 weeks। उसके बाद उसका प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा जो कि 8 हफ्ते के लिए होना चाहिए। मिनिमम टाइम जो है वो 8 weeks का होना चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशन जो है हमारा कमीशन के द्वारा दिया गया। देन कुछ और यहाँ पे बेहतर ढंग से टीचर एजुकेशन को बनाने के लिए प्रयास किया गया था, जिसमें ये है फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम द स्टडी ग्रुप ऑन एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन इंडिया विच मेट इन बड़ौदा इन मार्च 1964। यहाँ पे उनका एक मीटिंग हुआ था, द स्टडी ग्रुप ऑन एजुकेशन। उन्होंने बड़ौदा में एक मीटिंग किया और कुछ बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात यहाँ पे आई। विद्यालय संगठन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रैक्टिस टीचिंग, असेसमेंट, ये सभी को तो हमने महत्व दिया, लेकिन बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की भी आवश्यकता पड़ी। ये बातों को ध्यान में रखते हुए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को जो हमारा जो स्टडी ग्रुप है ऑन एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी टीचर्स, इनका एक मीटिंग हुआ मार्च 1964 में और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया टू एस्टैब्लिश स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन डिफरेंट स्टेट्स। विभिन्न राज्यों में SCRT का संगठन के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। साथ में NCT का भी यहाँ पे निर्माण करने के लिए भी उन्होंने प्रपोजल दिया, जो कि सेंटर में, केंद्र में रह के अपना कार्य को देखेगा टीचर एजुकेशन से संबंधित। यहाँ पे ये भी कहा गया द स्टडी ग्रुप जो था उन्होंने उनके फंक्शन को भी यहाँ पे सूचीबद्ध किया ताकि आगे इसमें कोई भी समस्या उनको ना हो। तो यहाँ देखा गया कि फेज बाय फेज हर स्टेप में टीचर एजुकेशन अपने आप को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है ताकि बेहतर ढंग से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हम दे पाएँ और एक भारतीय शिक्षा को और ज़्यादा सशक्त बना पाएँ। तो ये जो है इतना है टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंटल सिनेरियो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अदर डिफरेंट कमीशंस और कमिटीज़ हैं उनके रिकमेंडेशंस को। थैंक